Hello students, welcome to the next class. In this class we are going to discuss about questions which are based on the concept of non-uniform acceleration. प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस किए हैं, उसका स्पेशल केस जो कि है मोशन अंडर ग्रेविटी वो भी आप लोगों ने कर लिया। उसके अंदर आपने एक चीज़ रियलाइज़ की होगी कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता था, और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता था हम तीन फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज़ कर पा रहे थे. But what if the cases of non-uniform acceleration? So in those cases, you need to apply the concept of differentiation and integration, which are the basic formulas I'll once tell you, and then we will move on to solve the question. So the basic formulas that you need to remember is, the first formula is that of velocity. So you know velocity is given by dx by dt. ठीक है, rate of change of position. Acceleration is given by dv by dt. Acceleration is also given by v into dv by dx. ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, और अगेन यू विल रिक्वायर द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. In case if you do not know differentiation and integration, which has already been taught to you under the topic of basic maths, please go back to those videos, go through the topic differentiation and integration very nicely, because all those questions that I am going to take up today, they are going to extensively use the formulas of differentiation and integration, and if you are not clear about the topic, you will not be able to solve questions based on physics, and that is why basic maths has to be the most important part before even you think of starting this video. So again I am repeating, in case if you are not clear with differentiation integration concept, please go back to those videos, first see them and then start this. Even if after seeing those videos you have some things, some topic or some concept that I solve and you are not able to understand, you can get back to me and I'll try to explain you what exactly the logic was while solving that question. So let us start one by one to solve these questions, and I would expect these questions to be solved parallel with me, because they are not very easy to understand. So I would want you to solve it with me. We have been told that a particle moves on a straight line such that the product of acceleration and velocity is constant. हमको बताना है distance moved by the particle is proportional to. So we are given that acceleration into velocity is constant. ये हमको दिया हुआ है. अब ये देख के पता चल जाता है ना ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन अकेला कांस्टेंट होता है, तो ये तो एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी डेफिनेटली ये नॉन यूनिफॉर्म है. तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स नहीं लगा पाएंगे. ठीक है, तो अब हमको टाइम टी के रिलेशन में पूछ रहा है और डिस्टेंस की बात कर रहा है. तो पहले हम एक्सेलरेशन को हटा के लिख देते हैं dv बाई dt. ये हो गया v, ये हो गया k. ठीक है, अब इस मेथड को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल. वेरिएबल सेपरेबल मतलब जो भी वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर दो. जैसे v को dv के साथ रखना है तो मैंने रख दिया, dt के साथ t होना चाहिए, तो t तो हमारे पास है नहीं लेकिन कांस्टेंट है, तो dt को यहाँ ले जाते हैं, यानी ये हो गया k dt. अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दूंगा. इंटीग्रेशन लगाने पे v का फॉर्मूला, v का इंटीग्रेशन यानी v का पावर 1 है, तो v का इंटीग्रेशन बनेगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू k dt. k dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा k t, क्योंकि k तो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन के रूल्स है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इज नथिंग बट t. तो यहाँ आ जाएगा t, और जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तब ये कांस्टेंट आता है. ये कांस्टेंट की वैल्यू हो गई c. बात समझ में आ गई आपको? अब आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो, क्या होता है, ये कांस्टेंट की वैल्यू हमको उसने दी होगी. बहुत बार क्वेश्चन में दी होती है, बहुत बार हमें खुद से इंप्लाई करनी पड़ती है. जैसे मैं बताता हूँ आपको, इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी हुई है. जैसे आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तब आप देखोगे कि कैसे सी निकलता है. और देखो यही एक प्रॉब्लम है फिजिक्स के क्वेश्चंस का. जब तक आप उनको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप एक सिंपल सिंगल कंसेप्ट लेके चलोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. आपको हर एक कंसेप्ट को लॉजिक लगा के क्वेश्चन में सेट करना है. जैसे कि मुझे सी लिए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे सी चाहिए. सी यानी कुछ ना कुछ कंडीशन देनी चाहिए, जैसे बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ओरिजिन, ऐसा कुछ दिया होना चाहिए. तो ऐसा कुछ भी मुझे दिखा हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे एक वर्ड दिख रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू. ठीक है, आपको दिख रहा है ना प्रोपोर्शनल टू. प्रोपोर्शनल टू का मतलब क्या है, मुझे प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है. अब प्रोपोर्शनैलिटी निकालने के लिए ये टर्म नहीं होना चाहिए, तो वी विल टेक c इक्वल टू 0. नाउ इट इज वेरी ऑब्वियस व्हाई आई एम टेकिंग c इक्वल टू 0, बिकॉज आई नीड प्रोपोर्शनैलिटी. तो v स्क्वायर बाय 2 को मैं लिख दूंगा kt, तो v स्क्वायर हो जाएगा 2kt, तो v हो जाएगा रूट ऑफ 2kt. ठीक है, अगर प्लस रहता तो अभी मैं यहां लिख सकता हूं v इज प्रोपोर्शनल टू रूट t.
अब अगर सोचो यहाँ पे प्लस सी होता तो मैं ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लगा पाता, इसलिए जब जब प्रोपोर्शनल करके वर्ड आता है तो आप डेफिनेटली कांस्टेंट को जीरो ले लिया करो, सी को जीरो ले लिया करो, भले हमें कोई कंडीशन दी नहीं हो। लेकिन बाकी के क्वेश्चंस में आप ऐसे डायरेक्ट सी को जीरो नहीं ले सकते, कंडीशन गिवन होगी, हमें सी निकालना पड़ेगा। आगे क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी मिल गई, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर हाफ। लेकिन हमें वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी नहीं पूछी है, डिस्टेंस की पूछी है, तो वेलोसिटी को डिस्टेंस के फॉर्म में लिखो। अगेन dx by dt इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर हाफ, अगेन वेरिएबल सेपरेबल, सो dx इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर हाफ इंटू dt, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन। dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ x, t के पावर हाफ का इंटीग्रेशन कितना होगा, रिमेंबर द फॉर्मूला n+1 अपॉन n+1 करते हैं, तो पावर में हाफ प्लस वन यानी 3/2 और अपॉन में क्या आएगा, हाफ प्लस वन यानी 3/2, बट ये 3/2 तो प्रोपोर्शनैलिटी में चला जाएगा, तो और प्लस सी को क्या लेना है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन है, तो 0, तो यहाँ से हमको मिलता है x इज प्रोपोर्शनल टू t का पावर 3/2, सो द आंसर हैज टू बी सी। Very good question, see very carefully, again I am repeating, whenever you get proportionality you take the constant that you get in integration as 0 and go on solving it further. So this is the first question and a very good question to start off with. Hope you are clear with what I have done. Again I am repeating, if you are not clear with differentiation and integration, please do them thoroughly once more. A particle moves along a straight line, the relation between the position of particle and time is given to us. So we are given that x square is equal to 8t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4। देखो अगर x होता तो आप लोगों के लिए बहुत इजी है, x का डिफरेंशिएशन होता है dx by dt, तो वो बन जाएगा b, फिर उसको वापस डिफरेंशिएट करोगे तो बन जाएगा a, तो आपको a निकालने के लिए बोला है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि x स्क्वायर है, ठीक है, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या करें, 8 को कॉमन निकाल लेते हैं, सॉरी 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बनता है 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर है नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट नहीं ले पाऊंगा। इसका मतलब अगर सपोज करो ये ऐसा होता, इधर 2 नहीं होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, तो मैं इसको लिख देता t+1 का होल स्क्वायर, फिर दोनों तरफ रूट ले लेता, तो मुझे x मिल जाता। अब मुझे x निकालना बहुत डिफिकल्ट है, अगर x लूंगा तो पूरे पे रूट आएगा, फिर पूरे पे रूट का डिफरेंशिएशन उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको कॉमन निकाल के नहीं करूंगा क्वेश्चन सॉल्व, मैं ऐसे ही वापस लिख देता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने कॉमन निकाल के आपको क्या समझाने की ट्राई की। अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाता तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता और मेरा काम सिंपल हो जाता, फिर सीधा आ जाता x इक्वल टू समथिंग, फिर x को डिफरेंशिएट करता तो वेलोसिटी आ जाती, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता तो एक्सेलरेशन आ जाता, काम इजी हो जाता। लेकिन वो मैं नहीं कर पाया, तो मैं वापस से ओरिजिनल क्वेश्चन को ले रहा हूँ। अब मैं इस स्टेप को डिफरेंशिएट करूँगा, ध्यान से देखना मैं कैसे डिफरेंशिएट करता हूँ। आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले आया एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x इनटू, हमने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में किया होता तो आंसर होता 2x, सब समझना। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो बोलते 3x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, t के रिस्पेक्ट में, तो मुझे डिफरेंशिएशन कैसे लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा 2x, और मैंने डिफरेंशिएशन किया था t के रिस्पेक्ट में, टर्म था x का, तो इसके साथ मुझे मल्टीप्लिकेशन में लिखना पड़ेगा dx by dt। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट, इज इक्वल टू, अब ये विथ रिस्पेक्ट टू t ही करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 16t। इधर मुझे मल्टीप्लाई करके कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टर्म भी t है, डिफरेंशिएशन भी t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। प्रॉब्लम कब हो रहा था, ये टर्म x में था, लेकिन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना था, t के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफरेंशिएट करके मैंने dx by dt लिख दिया। आई होप यू आर क्लियर। से सपोज सेम थिंग, इफ इट इज y स्क्वायर एंड आई वांट टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे लिखोगे इसको, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे 2y, और y को डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dy by dx, साथ में ऐसे लिख देने का। लेकिन अगर आपको बोलता है y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो कुछ नहीं, तो 2y, क्योंकि वही y है ये भी y है, दोनों सेम है, तो ये लॉजिक लगता है, इधर ध्यान देना। 8t का डिफरेंशिएशन 8 होता है, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो 16t + 8 मिला। ध्यान से देखो, सबसे 2 कॉमन निकल रहा है, तो ये हो गया x, ये dx by dt क्या होता है v इज इक्वल टू 2 नीचे ले लो, तो ये हो गया 8t + 4, ये है अपना फर्स्ट इक्वेशन। सो आई हैव गॉट
पोजीशन इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 80 + 4, ये इक्वेशन मिला हमको यहाँ रुकना ही नहीं है, हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी डिफिकल्ट वन, प्लीज सी। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन आई विल हैव टू अगेन डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टी, ताकि जब ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होगा ना तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज अगेन आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट। सब लोग बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, क्योंकि ये पूरा का पूरा बायो वालों को तो पूरा 2 साल प्रॉब्लम चलने वाला है, मैथ्स वाले तो फिर भी 11th एंड होते होते डिफरेंशिएशन सीखेंगे, 12th एंड होते होते इंटीग्रेशन सीखेंगे। जैसे अभी जो करंटली 12th में स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अभी तक इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो तभी इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अभी से कंसेप्ट इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दो कि फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आए आपको। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। नाउ यू सी देयर आर 2 टर्म्स, सो आई हैव टू अप्लाई समथिंग विच इज नोन एज द प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल याद करो, क्या होता था, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज। तो इधर लगाना पड़ेगा, पहले x को डिफरेंशिएट करते हैं तो dx/dt, तो दूसरा v एज इट इज प्लस x एज इट इज v का डिफरेंशिएशन dv/dt। 80 + 4 का डिफरेंशिएशन 8t का डिफरेंशिएशन 1, 4 का डिफरेंशिएशन 0। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, dx/dt क्या हो गया, v वेलोसिटी होता है ये v1 और यानी v² प्लस x, dv/dt क्या होता है a इक्वल टू मिल गया 8। अब आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखो, आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ, तो xa इज इक्वल टू 8 - v², सो एक्सेलरेशन हो गया 8 - v² बाय x, ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब एक्सेलरेशन निकालना है x इक्वल टू 2 मीटर पे, यानी x की वैल्यू तो पता है तो यहाँ 2 डाल देंगे, लेकिन क्या आपको v पता है, v नहीं पता, हमको v भी नहीं पता, तो पहले v निकालना पड़ेगा। ये रहा इक्वेशन v का, ये रहा देखो, यहाँ से v निकालो। अब यहाँ पे v निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, t की वैल्यू, t पता है, t भी नहीं पता है। तो देखिए क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेट करके दिया है। तो पहला काम है, समझ रहे मैं जो बोल रहा हूँ, देखिए फिर से बताता हूँ, x गिवन है, v नहीं गिवन है, तो सर इधर v² डालेंगे तभी तो a निकलेगा। v² का इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये रहा। सर यहाँ पे v निकालना है, x गिवन है 2 मीटर, तो ये डाल दूंगा, लेकिन t नहीं गिवन है, तो फिर v कैसे निकलेगा। यानी ये यूज करने के लिए पहले मुझे t निकालना पड़ेगा। t कैसे निकालूंगा, मेन इक्वेशन से। मेन इक्वेशन में x को 2 मीटर डाल देते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ लिख देता हूँ 4, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ 4 इक्वल टू 8t² प्लस 8t प्लस 4, 4 कटा 4 से, यानी इधर से क्या कॉमन निकलेगा, 8t इंटू t + 1 इक्वल टू 0। अब क्या t + 1, इसको फिर कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं ना, 8t इक्वल टू 0 और t + 1 इक्वल टू 0, पढ़ा है ना 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक में। तो 8t इक्वल टू 0 से क्या मिलेगा हमको, t इक्वल टू 0, और इससे क्या मिलेगा, t इक्वल टू -1। ये तो नॉट पॉसिबल है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी टाइम की वैल्यू कितनी है, 0। हमें पता चल गया टाइम 0 है। यहाँ पे टाइम को 0 पुट करो, x को 2 पुट करो, x 2 है ना, तो क्या मिलेगा, तो देखो, तो यहाँ मिलेगा 2v इक्वल टू t को 0 पुट करो 4, यहाँ से मिल गया आपको v इक्वल टू 2। अब इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा 8 - 2 का स्क्वायर यानी 4 अपॉन x की वैल्यू 2, यानी एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर/s²। यू कैन चेक द आंसर इज 2 मीटर/s²। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट, but again as I told you, only practice can help you understand these type of questions because they are not easy. Let's move further. A particle moves along x-axis, velocity of the particle as function of x is given to us. So we have been given a relation. Find the velocity of particle at the instant when acceleration is 1.5 मीटर/s²। हमको बोला है v निकालो और a दिया हुआ है, क्योंकि a जब 1.5 है, यानी a 1.5 तो पहले तो हमको a का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो आप देखो ये मेन इक्वेशन है, सोच के बताओ, सोचो क्या होगा, 12x - 3x³ है। अब एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है a = dv/dt और एक होता है a = v dv/dx। तो मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, अगर मैं t के रिस्पेक्ट में तब करूँ ना जब इधर t है, इधर तो t है नहीं, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, x के रिस्पेक्ट में। अब लॉजिक लगाओ, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था v² को कैसे डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो v² का डिफरेंशिएशन पहले कर दोगे तो हो जाएगा 2v इंटू क्या लिखना पड़ेगा, dv/dx इज इक्वल टू 12x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12 माइनस 3x³ x³ का 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 9x²। अब ये जो टर्म बना
ये देखो आपको सीधा क्या मिल गया, एक्सेलरेशन. सो 2a इज इक्वल टू 12 minus 9x square. Let me call it as equation number 1. Now been asked to find out v when acceleration is this. तो देखो v का इक्वेशन तो हमारे पास है, बट v के इक्वेशन में हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x की. हमको x नहीं गिवन है ना, हमको क्या गिवन है, a. कनेक्ट करो चीजों को, a गिवन है. तो यह वाले इक्वेशन से मैं a को पुट करके x निकाल दूंगा और फिर वही x को इस v के स्क्वायर के फॉर्मूला में पुट कर दूंगा तो v मिल जाएगा. आगे बात समझ में क्या करना है, तो पहले a की वैल्यू पुट करते. a 1.5 है तो 1.5 पुट करो तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 12 माइनस 9x स्क्वायर. इधर से आएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू 9, x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1. पोजिशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी +1, कैन बी -1. बोथ ऑफ देम आर पॉसिबल. So I've got the value of x. Now I'll try to find out value of v. This is the main equation. यहाँ से v मिल जाएगा. x को पहले 1 पुट करते हैं तो v स्क्वायर क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 12 माइनस 3 यानी 9. तो v की वैल्यू बनेगी +-3 मीटर पर सेकेंड. यानी वेलोसिटी कैन बी +3 मीटर पर सेकेंड, यानी बॉडी कैन बी गोइंग टुवर्ड्स राइट, or velocity will be -3 meter per second, that is the body can be going towards left, but the speed is same 3 meter per second. So you can see that there is an answer A, but I am still left with, okay, if there was -3 also, I would have also ticked that because -3 is also coming. Now I have also got x equal to -1. So if I put x equal to -1, you see what happens. So I get v square equal to -12 plus 3 yani -9. Square of any number cannot be negative, and hence x equal to -1 is not possible. So you cannot get the answer of v. So there is only and only one answer, that is A, which is 3 meter per second. I hope you are clear. Very good question. Let's move further. Answer is A. A particle is moving on a straight line. Its acceleration as a function of displacement is given to us. The velocity is 5 when s equal to 10. What is the velocity when s is equal to 25 meter? Wonderful question. Let me write a equal to, मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा, मुझे हैबिट है पोजीशन को x से लिखने की, तो मैं इसको x लिख देता हूँ. बात एक ही है. Now if you see very carefully, you have been asked to find the relation between velocity and position, right? So you think what will I put a as? So I can put a as dv by dt because acceleration is also dv by dt. Acceleration is also v dv by dx. क्योंकि यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है तो dv by dt डालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि टाइम तो कुछ बात ही नहीं हो रही. तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को पुट करेंगे v इंटू dv by dx. दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 100 अपॉन x स्क्वायर. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल, यानी जो सेम टाइप के वेरिएबल है उनको अलग अलग LHS और RHS में कर दो. तो ये एक टाइप का वेरिएबल है तो इसको LHS में रखते हैं और ये dx को ले जाते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ x वाले टर्म्स है. तो 2 प्लस 100 बाई एक्स स्क्वायर पे पूरे पे ब्रैकेट लगा दिया मैंने और लिख दिया dx. अब क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड. नाउ बी वेरी केयरफुल, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन इट इज इन प्रोपोर्शनैलिटी, राइट? सो हियर यू आर गोइंग टू गेट c एंड यू कैन नॉट टेक c इक्वल टू 0. सो v dv का इंटीग्रेशन, तो v का पावर 1 है, v के पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 dx का इंटीग्रेशन. आई होप यू नो 2 dx को आप ऐसे लिखोगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx. इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है तो 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x प्लस 100 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, x के पावर -2 का इंटीग्रेशन x का पावर -1 अपॉन -1, तो यानी ये हो जाएगा x का पावर -1 अपॉन -1 प्लस c. यानी इक्वेशन लिख देता हूँ v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2x माइनस 100 अपॉन x plus c. This is the equation that I get of velocity. But I have been asked to find out velocity when s is equal to 25 meter. अगर मैं x को 25 डाल दूंगा तो c बच जाएगा, तो पहले c निकालना पड़ेगा. उसके लिए हमको कंडीशन गिवन है, ध्यान से देखो क्या कंडीशन गिवन है. when v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, s इज इक्वल टू हमारे लिए x इज इक्वल टू 10. तो पुट करो, 5 पुट करोगे तो ये आएगा 25 बाई 2 इक्वल टू 20 माइनस यहाँ 10 पुट करोगे तो 10 प्लस c. इसको सॉल्व करोगे, ये 10 है यहाँ ले आओगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5 बाई 2. यानी आपका इक्वेशन बना v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2x माइनस 100 अपॉन x प्लस 5 बाई 2. मिल गया इक्वेशन. अब बहुत सिंपल है, x को 25 डाल दो, v मिल जाएगा आपको. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर, यू कैन जस्ट पुट x इक्वल टू 25 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ v. द आंसर विल कम आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब जब वैल्यू पुट करोगे ना तो मेरे को ध्यान आ रहा है v का आएगा आंसर √97.
तो 97 का रूट अप्रॉक्सीमेटली 9.8 होता है. सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. ऑल दीज क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, दे आर वेरी न्यू टू यू. They will be the most difficult part for you to solve because these concepts, integration and differentiation, are not small things. बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिजिक्स के अंदर बहुत लिमिटेड चीज़ें आती है. तो अगर सब टाइप को एक एक बार अच्छे से कर लोगे ना तो कभी गलती नहीं होगी. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन अंडर डेसेलरेशन ऑफ वी स्क्वायर एंड इनिशियल वेलोसिटी इज वी नॉट. सी इनिशियल वेलोसिटी इज वी नॉट का मतलब कि टाइम कितना है, जीरो. इनिशियल है ना, टी इक्वल टू जीरो पे स्पीड कितनी, वी नॉट. द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी इज. वेरी गुड क्वेश्चन. वी हैव बीन टोल्ड दैट द डेसेलरेशन, राइट, सो वी हैव बीन टोल्ड एक्सेलरेशन, एंड सिंस इट इज डेसेलरेशन आई विल पुट अ माइनस साइन. समझ में आ गई बात. अब टाइम का रिलेशन है, डिस्टेंस निकालना है, तो एक्सेलरेशन को डी बाई डी टी पुट करते हैं, तो माइनस बी वी स्क्वायर. अगेन वेरिएबल सेपरेबल, so dv by v square is equal to minus b dt integrating on both the sides. देखो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन है ना माइनस बी पे लगाया, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर ही आ जाते हैं. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रूल है, मल्टीप्लिकेशन में जब भी कांस्टेंट हो बाहर निकाल देने का. तो मैंने इंटीग्रेशन इन पे लगा दिया. अब dv by v स्क्वायर का इंटीग्रेशन सोचो क्या होगा. तो अभी मैं लिख के तो दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको टाइम नहीं लगना चाहिए. v का पावर -2 है, तो v का पावर -1 अपॉन -1 बनेगा इंटीग्रेशन इसका. तो ये बन गया v का पावर -1 अपॉन -1 इक्वल टू माइनस बी. 1 का इंटीग्रेशन 1 dt है, तो 1 का इंटीग्रेशन t होता है माइनस बी टी प्लस सी. तो बेसिकली -1 अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस बी टी प्लस सी. मैं क्या करता हूँ, सबके साइन बदल देता हूँ, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू बी टी माइनस सी. नाउ आई वॉन्ट डिस्टेंस यानी पोजीशन चाहिए. पोजीशन के लिए मैं v को डालूंगा dx बाई डी टी. वी को क्या डालूंगा, dx बाई डी टी. लेकिन मेरे को पहले c की वैल्यू चाहिए. c के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. तो c की वैल्यू देने के लिए उसने हमको कंडीशन दी है कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट है. तो t इक्वल टू 0 पे v है v नॉट. पुट करो तो 1 अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि t को 0 माइनस सी. तो c की वैल्यू मिल गई -1 अपॉन वी नॉट. तो इक्वेशन क्या बना, तो इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, आप देखिएगा. तो इक्वेशन बनेगा 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन जो है, बी टी माइनस, क्योंकि सी की वैल्यू नहीं, बी टी माइनस और -1 अपॉन वी नॉट यानी प्लस 1 अपॉन वी नॉट. आप ये नोट कर लो यहाँ तक जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करके, क्योंकि मुझे मिटा के इधर ही इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना है. सो आई एम गेटिंग द इक्वेशन एज 1 अपॉन वी इज इक्वल टू बी टी प्लस 1 अपॉन वी नॉट. लेट्स सॉल्व फर्दर. 1 upon v is equal to bt plus 1 upon v naught. Now I need to find out distance यानी position. तो मैं v को क्या डाल दूंगा, dx by dt. तो इधर dx by dt डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, dt by dx is equal to bt plus 1 by v naught. वेरिएबल सेपरेबल, तो dx यहाँ ले जाते हैं, ये नीचे ले आते हैं, ऐसा बनेगा. ध्यान से देखो. देखो ये जो dx dt वाले टर्म है, इनको डिनोमिनेटर में मत लेके जाना, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए ये ऊपर रहने चाहिए. नाउ वी विल इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स, राइट. सो दिस dx का इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल, इट विल बिकम x. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइड dt? सो सी, I mean, I don't know whether you have been taught this or not, but whenever you have got integration of 1 upon t, it is in the form of log ln t. ln यानी नेचुरल लॉग, या भले आप उसको लॉग लिखो. देखो नेचुरल लॉग ln लिखते हैं ये लोग, तो अपन लिख देते हैं ln t. तो इधर भी देखो डिनोमिनेटर में t किसी के साथ है, लेकिन t का पावर तो 1 ही है, तो इधर भी log बनता है. तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ bt प्लस 1 बाई वी नॉट. ध्यान से देखना, log ऑफ bt प्लस 1 बाई वी नॉट. और मैं एक काम करता हूँ, पहले एलसीएम लेता हूँ फिर इंटीग्रेशन करता हूँ, क्योंकि आपको उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी. तो मैं एक बार पूरा सॉल्व करता हूँ. इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो वी नॉट ऊपर चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन में आएगा वी नॉट डी टी अपॉन वी नॉट बी टी प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स. अब ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा. अब अगेन यहाँ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log ऑफ वी नॉट बी टी प्लस 1 अपॉन, क्योंकि 1 अपॉन में था ना. अब क्या होता है, t का कोई कोफिशिएंट है, अगर t का कोफिशिएंट है ना, वो उससे डिवाइड करना पड़ता है. ये आप इंटीग्रेशन किया होगा तो आपको पता होना चाहिए
जैसे मैं एग्जांपल दूँ अगर कि आपने ये पढ़ा होगा कि cos x का इंटीग्रेशन जो है ना वो माइनस साइन एक्स होता है, सॉरी प्लस साइन एक्स होता है, लेकिन cos 2x का इंटीग्रेशन करोगे ना तो वो साइन 2x बाय 2 होता है, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 2, उससे डिवाइड करना पड़ता है। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन तो लॉग में है, लेकिन t का कोफिशिएंट कितना है, तो t का कोफिशिएंट है v0b, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, और ये वाला v0 पहले से बाहर है। इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c, v0 कटा v0 से, तो मुझे मिला x प्लस सी इक्वल टू ln v0 bt प्लस 1 upon b. Now how do I find out c? So I need to be given something. So you see there is no data given to us, no data to find out x. If I look at the option, I will choose the one that matches very close to me. It matches if I take c equal to 0. See, that is why I am saying, right, in most of the questions it is all based on your practice. देखो मेरे को पता चल गया ना यार, अभी मैं c कहाँ से निकालूं, कंडीशन दी है क्या कि इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, ऐसा कुछ बोलता तो मैं t को 0 पुट करता, x को 0 पुट करता, बॉडी इज एट ओरिजिन तो x को 0 पुट कर दूं, कुछ नहीं दिया है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा आंसर तो आ गया, मैं चेक करूंगा, एक ही ऑप्शन है जो इससे मैच करता है वो है b, तो आप चेक करो आंसर b है। तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना होता है। सो सी ऑलवेज अवर ट्राई इज टू फाइंड आउट c, but sometimes for example in questions based on proportionality you take c equal to 0, and in sometimes when you come to the end and you feel you cannot find out c equal to 0, you cannot find out c, and by taking c equal to 0 your answer is matching, and take it c equal to, by the way this is not correct, I cannot take c equal to 0, c can be anything, but my options or data I am not given what is c, so on assuming a specific value of c I am getting a specific answer, तो मैंने कर दिया वो, ठीक है, सिंपल। लेट्स मूव फर्दर, राइट। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, नाउ सी यहाँ पे हमको दिया हुआ है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब है t इक्वल टू 0 पे स्पीड 0 है, इट्स एक्सेलरेशन इज दिस मच, वेयर v इज दिस, व्हाट इज द डिस्टेंस आफ्टर द पार्टिकल अटेन्स 15 मीटर पर सेकेंड। सो आई थिंक वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो आप लोगों से बहुत ईजिली हो जाना चाहिए, ये आपको दिया हुआ है, डाल दो ए को, क्या डालोगे, तो देखो एक तो आप dv बाई dt डाल सकते हो, दूसरा आप डाल सकते हो v dv बाई dx, सोचो क्या डालोगे, dv बाई dt डालोगे तो टाइम में आएगा, टाइम का कुछ नहीं दिया हुआ है, देखो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है यानी x, और वेलोसिटी के बारे में है यानी v, तो रादर देन पुटिंग a is equal to dv by dt I will put it as a equal to dv by dx. This is what logic you will have to think before starting the question, so it becomes 10 upon v plus 1, very simple, variable separable, तो ये इधर चला जाएगा v into v plus 1 into dv, this is equal to 10 dx. I am going to first of all solve them, so this becomes v square plus v dv, and this is nothing but 10 dx. Now I will integrate on both the sides. See very carefully, integration करो, v square का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो v cube by 3, v का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो v square by 2, 10 तो कांस्टेंट है dx इंटीग्रेशन में, तो x plus c. Now I've been told particle starts from rest. See, I'm not told that the particle starts from origin, so I will assume that the particle is also starting from origin, so I'll take x equal to 0. So on putting v equal to 0, x equal to 0, I get 0 equal to 0 plus c, which implies that our c is also 0. c 0 आ गया तो इक्वेशन क्या मिल गया, v cube by 3 plus v square by 2 equal to 10x plus c. I think question is very simple, I will not solve, I can simplify it, v square कॉमन निकाल दो तो थोड़ा काम इजी हो जाए, यानी v by 3 प्लस हाफ हो गया, और इधर है सॉरी c तो गया, और इधर है 10x. नाउ पुट v इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड x, सॉल्व हो जाएगा ना, v को 15 डाल दो, सॉल्व करके x निकाल लो, आई थिंक आंसर विल कम आउट टू बी, यस आंसर विल कम आउट टू बी 123.75. सो दिस इज द मेथड दैट यू नीड टू एम्प्लॉय. लेट्स मूव फर्दर. A particle starts moving rectilinearly at t equal to 0 such that the velocity as a function of time is t square minus t. Time interval the particle decelerates, यानी हमको पूछा गया है कि कब उसका acceleration नेगेटिव होता है. भाई सबसे इजी क्वेश्चन है अभी तक जितने किए उसमें से, dv by dt निकाल लो, तो ये आ गया 2t minus 1, यानी acceleration की वैल्यू आ गई 2t minus 1. अब डेसेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0, यानी 2t minus 1 लेस देन 0, 2t लेस देन 1, t लेस देन हाफ, यानी t की वैल्यू हाफ से छोटी होनी चाहिए. सो द आंसर इज गोइंग टू बी नो, द आंसर इज गोइंग टू बी b.
right? Answer is going to be B, very simple. Check, answer is B. So with this we come to an end of the first part, right? I have tried to divide this whole topic into two parts. So I will do questions twice. एक अभी किया, एक next lecture में करेंगे. But more or less I hope you are clear with whatever I taught you. Again I am repeating, integration, differentiation are very important. If you find any doubts then please get back to me and I will try to help you out. Thank you.